of the Gaza Foundation and India International Center. We have been running two series in the IIC. The first one, Art Matters, the other one, Gandhi Matters. This is the 91st. Sir, Gandhi Matters 20th. 91st. In this time we have mixed it up because to get a space, and I can tell you, although we wanted to continue the Gandhi series, we don't get enough speakers. And speakers of a certain quality and intensity and all that. So after a long time, this is the 20th in the Gandhi Matters series. And we have Amrit, how is it, Ganga? Or Ganga? Huh? Not Ganga. Ganga. Okay. He's a Mumbai-based author, film theorist, curator, historian. He writes both in Gujarati and English. And some of these books have been awarded by the Gujarat Sahitya Academy. Cinema Prayog is a conceptual theory of practice which he has presented at several venues, including Pompidou Center, Paris, State Modern London, Rose Film School, Poland, Kala Bhavan, Shantiniketan. He has received for his distinct contribution to India's Film Society movement. The Federation of Film Societies of India honored him with Lifetime Achievement Award in Tricur in 2022. Earlier, the international body had honored him in Berlin, and as consultant curator of the National Museum of Indian Cinema, he was responsible for the unique Gandhian Cinema Gallery. Please come. Everybody else gets a Lifetime Achievement Award. It's only I who have never got it. Get it every day. And You're living it. no. When Kapilaji got Padma Vibhushan, there was a meeting organized on behalf of the dancers. And although I was not supposed to be a speaker, all of a sudden Karan Singh saw me and he said, "You should speak." So I said कि मुझे बड़ा अटपटा लगा। अटपटा क्यों लगा? इसलिए नहीं कपिला जी को पात्रता नहीं, इसलिए कि हम लोगों का काम दूसरों को पुरस्कार दिलवाना है, हमारा काम खुद पुरस्कार लेना थोड़ी है। And Kapila ji, of course, laughed, although she might have been hurt. So, Panchatirat, and now you have the floor. Okay. I'm going to sit here. All right. I can watch यहाँ you. दो कुर्सियाँ रखी है, माइक नहीं, वो तो इसलिए रखी कि आपका मनोबल बना रहे। 2019 BC के बात है। 2019 BC सोच के शायद लगा होगा कि 4,500 वर्ष पूर्व की, हिंदी में बोल ठीक, तो महावीर और बुद्ध का समय होगा, शायद ऐसा लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये BC एक नया कालखंड हमने तैयार नहीं किया, लेकिन कालखंड हो गया है इतिहास में। जो BC जो बोलता हूँ मैं, 2019 का साल था, जो इसमें छोटी सी फिल्म आपको दिखाऊंगा। BC मतलब बिफोर कोरोना। अब आजकल हम बोलते हैं कोरोना तो पहले की बात है। ये एक कालखंड, एक काल रेखा बन गई है। AC is after corona. BC and AC, normally I talk, it's not before Christ, but before COVID. Before COVID, 2019 की बात है, जुलाई का महीना था, और तब मैंने सोचा था, जब सूरत में था, उसके पहले पंचतीर्थ की कल्पना आई थी। कैसे आई? पंच मीन्स 5। I belong to कच्छ, तो हम 5 को पंच बोलते हैं। सिंधी में भी पंज बोलते हैं, पंजाबी में भी पंज बोलते हैं। पंच आप, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, आप मतलब नदियां, और 5 नदियों का जो
मेरी सरनेम मैं सोचता हूँ क्या कैसे आई, तो शायद घग्गर नदी से आई होगी। तो नदियाँ थी, और हमारी जो कुलदेवी है जो हिंगड़ाज, वो उसका स्थान है बलूचिस्तान में। देखिए बलूचिस्तान और कच्छ का छोटा सा गांव, तो ये मेरे ख्याल से बलूचिस्तान से लेकर पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर कच्छ आए होंगे, ऐसा मेरा एक अनुमान है। तो ये स्थलांतर जो है ना, माइग्रेशन, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज नथिंग बट माइग्रेशन। आप कुछ भी कानून लगाइए, लेकिन ये माइग्रेशन का हमारा इतिहास है, स्थलांतर। तो मेरे ख्याल से मेरे पूर्वजों के पूर्वज ये बलूचिस्तान से लेकर पंजाब से लेकर राजस्थान से आए होंगे, ऐसा मेरा मानना। तो ये मेरी फैमिली नेम का थोड़ा रहस्य आपको। पंचतीर्थ पाकिस्तान में भी है, बंटवारे से पहले, बंटवारे के बाद अभी भी है। पंचतीर्थ पता है ना, दीज आर 5 पॉन्ड्स। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर है, एक ही मंदिर है, और ये 5 पॉन्ड्स की वजह से उसको पंचतीर्थ बोलते हैं। अभी तो उन्होंने कुछ हेरिटेज दर्जा दे दिया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये जो पंचतीर्थ है मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि जब मैंने सोचा था, पंचतीर्थ के बारे में नहीं सोचा था, तब एक ही विचार था सूरत के पास कि यहाँ जाना है और सबको लेके जाना है। तो ये जो एक इंद्रिय विचार था, एक इंद्रिय का सिंगल ऑर्गन, एक इंद्रिय अमीबा होती, अमीबा, तो दिस अमीबा थॉट, यू नो, अमीबा इज हरिपुरा। तो हम हरिपुरा जाना चाहते थे। हरिपुरा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो सूरत के बिल्कुल नजदीक है। तो हरिपुरा अमीबा मैंने सोचा था, अमीबा कैसे ऑक्टोपस बन गया, बनते गया ऑक्टोपस। और हरिपुरा के 13 किलोमीटर दूर एक जगह है बारडोली, बिल्कुल पास में, और सूरत से बहुत नजदीक बारडोली आया। आई वॉज इन सर्च ऑफ फुटस्टेप्स ऑफ गांधी जी। तो ये फुटस्टेप्स देखते गया तो ये बारडोली मिला, स्वराज आश्रम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो मकान अभी भी है, आप देखोगे इसमें। और फिर थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आइए तो बलसार डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह मिलती है गांधी की। एक है दरासना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी डोंट टॉक अबाउट दरासना। सॉल्ट का सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं, तब दरासना के बारे में हम बहुत कम बातें करते हैं, दांडी की ही बात करते हैं। तो दरासना से दांडी दूर नहीं है, उसके बीच में आता है एक आश्रम, अभी भी इतना ही प्रवृत्त है, वो है वेड़छी आश्रम, बहुत ही जुगतराम दवे ने बनाया था। मुझे आनंद है कि हमारे बीच में आज पार्थिव शाह है, उनके पिताजी हकू शाह, उनका बहुत इसमें अनुदान है वेड़छी आश्रम में, तो आप देखोगे। और फिर हम वालोड भी गए थे। वालोड इज नॉट वेरी फार। वालोड में उनकी फूफी है तरलाबेन शाह, जो आज भी गांधीयन बुनियादी शिक्षा वो चला रही है आज भी। उसके बारे में शायद पार्थिव को मैं विनती करूंगा, बाद में हम जब बातें करेंगे तो कुछ बातें कहे वो। ये सब गांधी का मैंने पंचतीर्थ, एक अमीबा से ऑक्टोपस बन गया, और एकेंद्रिय से ऑलमोस्ट पंचेंद्रिय बन गई है। ये जो फिनोमिनन था, ये गांधी की देन है, मेरी कुछ नहीं है। गांधी एक ऐसा फिनोमिनन है जो हम पकड़ नहीं पाते। जितना भी आप, मैं उसको आर्कियोलॉजिकल साइट कहता हूँ, गांधी इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट। जितना भी आप उत्खनन करो आपको मिलते जाएंगे। अभी भी मोहनजोदड़ो पता नहीं पूरा मिला है कि नहीं, हड़प्पा पूरा मिला है कि नहीं, लेकिन जितना आप उत्खनन करते जाओ तो मेरे ख्याल से ये जो आप आज गांधी के बारे में जो सिंपल बात सुनते हैं और देखोगे आप, तो लगेगा कि ये पता नहीं था। एक लेवल क्रॉसिंग है जो इस जगह से बिल्कुल पास में है,
एक गांव का नाम है कराड़ी, दांडी के पास। वहां लेवल क्रॉसिंग पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी गेट, गेट ऑफ महात्मा गांधी, ऐसा लिखा है। क्यों? ये भी रहस्य है, पता नहीं, एक अभी तक किसी ने बात नहीं की है। फिर उधर छोटा सा रेलवे स्टेशन है भैया, जो वो ऑपरेशनल नहीं है। वो रेलवे स्टेशन का नाम है गांधी स्मृति, बोर्ड है, रेलवे स्टेशन गांधी स्मृति। वहां गांधी का जो धरपकड़ बोलते हैं, अरेस्ट किया गया था। इसका थोड़ा सा रहस्य आपको बता दूं। धरासना जाने वाले थे गांधी जी, दांडी तो आपको पता है 2 दिन पहले अशोक भाई 12 मार्च को 2 दिन पहले दांडी कुछ को 1930 में 12 मार्च 1930 में से गांधी निकल पड़े थे 78 साथियों को लेकर साबरमती आश्रम से लेकर दांडी चल के। हमको पता नहीं चली गई वो डेट 12 मार्च। और कल फिनिक्स आश्रम जो स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में, उसका कल 120 साल हो रहे। तो ये देखो कितनी सारी ये, तो ये मेरा जो ये फिल्म और जो करना है, ये जुटाने का काम है, कंसोलिडेशन। आई थिंक दिस इज व्हाट आवर एज ऑफ AC is all about. The technology, what we are doing on Facebook or social media, we are retrieving memories. और ये जुटाने की बात करते रहते हैं, मेमोरी को कंसोलिडेट करो जितना भी हो सके। तो ये कंसोलिडेशन का एक था। और दूसरा आप देखोगे तो एक सिनिसिज्म, आई वांटेड टू रिप्लेस सिनिसिज्म विथ सॉलिडारिटी। बहुत सिंपल बात, सब बहुत ही सिंपल बात ये आपको मिलेगी। तो वी हैव, आई थिंक, ग्रोइंग इंक्रीजिंगली cynical about many things, that we can't do many things, we can't do that, we can't do, this is such a great force, what we can do, you know, this एक cynicism जो अंदर एक हमारे विस्तृत होते रहता है, तो उसके सामने आप देखोगे तो एक सॉलिडारिटी का भाव आपको मिलेगा। ये सॉलिडारिटी कैसे आई? इसमें कोई भारीपना नहीं है, इसमें कोई बुद्धि का भार नहीं है। ये हमारी जो फिल्म है, इसमें बुद्धि का भार नहीं है, वो तर्क का भार नहीं है, इसमें सिर्फ बस नृत्य है, गान है। ये गान गांधी बाबा डाल्टनगंज से हमारी मेघा आई थी, गांधी बाबा के गीत गाती है, वो झारखंड से आती है, ये सूरत। और पंचतीर्थ हमारे साथ, हम पंचतीर्थी थे, वो फिरती है 5 जगह। और 2 दिन के अंदर बहुत स्पॉन्टेनियसली होते गया। एक विचार आया, अमीबा बिकमिंग ऑक्टोपस, और गाड़ियां 16 युवा श्याम केशी, जनरली हम सब श्वेत केशी है, वो सब सफेद बाल पक गए, लेकिन यंग आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स ज्वाइंड एंड दे वर क्वाइट यंग, very engaged. They became engaged with Gandhi. When they saw this place, this actual space is still active, still bubbling with hope and energy, they were so impressed. They got interested in knowing more about Gandhi. This is what I saw. Young Arpita Tumar, who is an architect student, read something from a book on Dharasana, which was written by Mohan Bhai Dandikar. He passed away. You will see in the film. She started reading right there on Dharasana in front of the soil pans, and there were tears in her eyes. Young girl. So this is what happens to us. How transformation takes place. To knowing how history enters into us, our body, the whole body of history. So this consolidation was one idea. This is what we are all doing today. We are trying to consolidate thought. We are trying to consolidate from the past. Facebook में आपको 5 साल पहले की मेमोरी वापस वो टेक्नोलॉजी दे देती है आपको, 5 साल पहले ये हुआ था आपके साथ। तो ये कंसोलिडेशन का जो है, जोड़ना और जुटना और लुटना, लुटाना भी एक अच्छा शब्द है, जैसे मक्खन चोर, वो चोरी अच्छी तरह से। तो ये लूटना, हम लूटते हैं ये विचारों को, इतिहास को। तो इतिहास को पाना ये एक नम्र प्रयास है मेरा, कि मेरे साथ एक नौजवान मेरे विद्यार्थी है,
सूरत का रहने वाला है। ये जो फिल्म है उसका नाम ही पंचतीरथ है और ये 28 मिनट की फिल्म है, मोबाइल फोन पे बनी हुई है, एक नया पैसा भी खर्चा नहीं किया इस पे बनी। एक डिब्बा है ना, डिब्बा, इसको वो स्पिनिंग व्हील मानता है कि जाए, उसको बुलाऊंगा मैं, आपको कहानी बताएगा। दिस इज ये डिब्बा है, इसको हमको यूज करना है। इसको हम कैसे क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं? दिस इज द ओनली थिंग विच रिमेन्स विथ अस ऑन आवर बॉडी 24 आवर्स अ डे। हर समय हमारे साथ रहता है ये जो चीज है, और जेस्चरल इम्पैक्ट दैट इट हैज ऑन अक्रॉस द यूनिवर्स। हर कोई ऐसे करता है। दिस मूवमेंट ऑफ द फिंगर, वी हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ टच। स्पर्शेंद्रिय है, वो स्पर्श इसको करती है, स्पर्श करना और ऐसा करना। ये जो है वो हर अबाल वृद्ध सब ऐसे करते हैं। 3 साल का लड़का हो या तो 80 साल का वृद्ध हो, 90 साल का, दिस becomes so important movement of this our age that this whole gestural aspect of our sharir is, I think, is quite interesting. The manner in which we are all developing ourselves, the universe around us, and there again in the center comes Gandhi, because we want to transform this dibba. And Jai, either we can talk later after the film. I think that will be better. Once you have seen it, you have the sense of 5 places. Which are these 5 places? Dandi, Dharashna in the Valsad district, Vedchi, then in Surat district is Haripura and Bardoli. These are the 5 Gandhian places where Gandhi had a lot of impact. And my also curiosity was, why Gandhi chose South Gujarat? ये सब दक्षिण गुजरात में है जगह है, तो दक्षिण गुजरात में गांधी का इतना प्रभाव। उत्तर में भी मैं भी गया था, एक जिलियात करके आश्रम, गांधी आश्रम, नॉर्थ पाटन जो है नॉर्थ गुजरात में, उससे भी ऊपर, तो वो बड़ा आश्रम है, बहुत महंगे और बहुत ही प्रवृत्तियां हो रही। मालजी भाई देसाई जो उनके फाउंडर थे, ही मस्ट बी अराउंड नियरिंग 90 नाउ, स्टिल एक्टिव। तो मेरी एक कल्पना है बुनियादी फिल्म शिक्षा, तो मैंने कुछ दिखाया था, कुछ बात की थी, व्हाट कुड बी बुनियादी फिल्म शिक्षा। तो मालजी भाई एट द एज ऑफ 90 वाज सिटिंग देयर फॉर 90 मिनट्स। सो दिस इज, आई थिंक, समथिंग Gandhi spirit. I don't talk about Gandhi as such. Gandhi is not individual. I talk about Gandhi-ness, Gandhi-pana. Gandhi-pana important है, आप उसको कभी भी नष्ट नहीं कर सकते गांधी पने को। गांधी नेस जो है उनको निभाना है, उनको टिकाना है। गांधी तो चलो अभी भी सुनाई देते हो, पिस्तौल के 3 धन 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 गिरा, बोला हे राम, चले गए, उसको नश्वर दे। लेकिन ये जो गांधी विचार है, गांधी पना है, गांधी नेस है, उसकी खोज में हम अभी भी चल रहे। मेरे ख्याल से अनएंडिंग होगा ये, कि मेरा जो प्रयोग का, आई कॉल माई सेल्फ थियरिस्ट बिकॉज सिनेमा प्रयोग इज अ थियरी एंड आई गॉट फ्रॉम गांधी। गांधी गुजराती में लिखे थे उसकी आत्मकथा, हमारा सत्य ना प्रयोग हो, प्रयोग बात करते हैं। प्रयोग इज नॉन एब्सोल्यूटिज्म, प्रयोग कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, प्रयोग कैन नॉट बी self-righteous, which we see all around the world. This whole absolute, as if truth is absolute, as if truth can be pocketed. Once you pocket the truth, it's finished. It doesn't remain the truth. Truth has to be chased all the time. You are chasing the truth. Truth आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उसके सत्य की शोध में हो, इसलिए आप प्रयोग बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो ये जो है प्रयोग की बात इसलिए मैं करता हूं कि जैसे जैनिज्म में अनिकांत का सिद्धांत है, विच इज नॉन एब्सोल्यूट, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। तो ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको मैं रेशोमोनिज्म भी बोलता हूँ। रेशोमोन आप अकेरा को रसावे के देखो तो इसमें एक ट्रूथ नहीं है, मल्टीपल ट्रूथ है। तो ऐसा एक सत्य की खोज, और सत्य ऐसा है कि आपको मिलता नहीं है, वो सत्य के पीछे आप भागते रहते हैं, और कब
सत्य की ऐसा एहसास होता है कि ये सत्य हो सकता है, पॉसिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट संभवता। ये संभव होना, ये पंचतीर्थ के जरिए ये जवान जो हमारे साथ आए थे साथी, आप देखोगे मिला। धरासना में अभी भी उसके मेमोरियल्स रखे हैं गांधी जी को। और मैं वापस आता हूँ, गांधी, महात्मा गांधी गेट ऑफ महात्मा गांधी और गांधी स्मृति। धरासना जाने वाले थे दांडी को, तब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि ये गांधी धरासना जाएगा, और जाएगा तो पूरा नेशन में न्यूज स्प्रेड हो जाएगा और पूरा देश ऐसे जाग उठेगा कि ये धरासना में गांधी गए। तो उनको they were quite afraid, they were panic, British government, and they wanted to stop that. So what do? They arrested Gandhi at midnight. So people are sleeping. People won't know. Midnight को यहाँ पकड़े थे, यहाँ करारी के पास, करेक्ट मी पास if I'm. तो वहाँ अब जो गांधी बोर्ड लगा, देखोगे वहां से पकड़े, वहां से फ्रंटियर मेल आ रहा था, उसको रुकाया। फ्रंटियर मेल में तो धकेला गांधी को, फ्रंटियर मेल आया बोरीवली, बॉम्बे में, बोरीवली स्टेशन पे, वहां से पूना ले गए, उसको अरेस्ट कर दिया मध्यरात को। तब गांधी जी भी थोड़ा विचक्षण थे, तो उन्होंने अपने आप को, पता था उनको, उसको सेंस थी कि मुझे कुछ होने वाला है, हो जाएगा। तो उन्होंने, अब्बास तैयब जी एक एडवोकेट लॉयर थे, उन जज थे सॉरी, तो उनको अपॉइंट कर दिया था, और सरोजिनी नायडू को आप धरासना जाओगे, कस्तूरबा भी थे। तो धरासना वो गए, धरासना में साहब 4 लोगों की हत्या हो गई, मार्टर हो गए। इतना गंभीर मामला था वो, दांडी से भी, और काफी सारे घायल हो गए। कस्तूरबा, उसके बेटे भी थी मणिलाल के जो पौत्र है वो तुषार गांधी, तो मणिलाल भी, उनकी भी धरपकड़ हो गई। फिर सरोजिनी नायडू सब अरेस्ट हो गए, तब उस काफी घायल हो गए। तो उसका सब मेमोरियल अब भी है, लेकिन धरासना को ज्यादा हम गए तो बहुत एक हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन पहुंचाने लगे। और ये मेगा हमारी है, तो गाना गांधी बाबा के गाने गाने लगे, राइट देयर ऑन द स्वॉल्ड पैन, आप देखोगे उधर। तो ऐसे 2 दिन के अंदर हम, बस ऐसा नहीं कि हम वर्ल्ड विंड गए और भाग गए, ऐसा नहीं, हम ठहरे उधर। आप देखना 2 दिन में बहुत कुछ कर दिया हमने। 2 दिन में पंचतीर्थ, 5 तीर्थ, तो पंचतीर्थ में मुझे कच्छ की भी एक पंचतीर्थी है जैनों की, अबड़ासा करके एक प्रांत है कच्छ में, वहाँ 5 तीर्थ है, 5 गांव है, एक सुथरी, तेरा, नडिया, कोठारा और जखौ। जखौ में से जख आए थे, जखौ वाज बंदर, पोर्ट था। तो ये 5 तीर्थ है, बहुत बहुत खूबसूरत है, उसके जो देरासर वगैरह नक्शी काम वगैरह, तो वहाँ जाते हैं लोग 5 तीर्थ करने के लिए। तो ये पंचतीर्थ, ये भी शायद मेरे अंदर होगा कुछ, लेकिन तब मुझे कुछ पता नहीं था। जो ये अमीबा जो गिरने वाली थी, छोटी सी एक इंद्रिय, तो पंचतीर्थ ऐसी दिमाग में आ गया, एक टाइटल रखा पंचतीर्थ के 5 हो गए। वो वालोड भी गए थे हम, वालोड पास में, वालोड मतलब हकुशा का गांव, वहाँ जन्म स्थान उसका। वहाँ उनके पार्थिव की जो फुफी है वो जैसे बताया तरला बिन शाह, वो जो बुनियादी शिक्षा की अभी भी चला रही अभियान। तो गांधी जिंदा है। इस फिल्म के अंदर कुछ आपको मिलेगा नहीं, सब उपदेश नहीं है, इसमें कुछ बड़ा बुद्धि का वो नहीं है, विधान नहीं है, इसमें सिर्फ गाने हैं, और हम हाथ में हाथ मिलाकर गाते हैं बूढ़ों के साथ। बुजुर्ग जो अभी भी, संगमित्रा बहन जो है, उमा बहन, नारायण भाई की डॉटर, और नानी बहन निरंजना कलार थी जो बारडोली में है, सब 80+, they are still active. So they also started dancing with us, हाथ में हाथ मिलाकर। दिस इज सॉलिडारिटी। आदिवासी कन्याएं, छोटी बच्चियां, सब मिला के इतना बड़ा वर्तुल बनाया और हाथ में हाथ मिलाकर गाना गाते हैं सबड़ी के। और आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ऐसा भी है। ये कुछ आशा जो है देश में कभी मरने वाली नहीं। ये जो उमंग है, जो भी करते हैं हम, और जो एनर्जी है,
अभी भी इतनी है। हम अगर चाहें तो ऐसे कोनों में तो पंचतीर्थ के द्वारा हमको एक ऊर्जा मिली। ये ऊर्जा एक डिब्बे में हमने डॉक्यूमेंट कर दी। ये छोटे छोटे से साधन जो कैसे एक नया पैसा खर्चा करे बिना, सिर्फ थोड़ा समय दिया इसको। तो दिस होल आइडिया अबाउट स्पेंडिंग 800 करोड़ रुपीज, तो ये मैं रस सिद्धांत को मैं काल में डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो रस है, रस और काल, ये मेरे ख्याल से काल है विभत्स रस का काल। तो ये विभत्स रस में 800 करोड़ की बातें, 200 करोड़ की बातें होती है, 1200 करोड़ की बातें, करोड़ों में ये बातें मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे तो गांधी के साथ तो ये तो होगा नहीं, तो हमको इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी कोशिश की हमने। आप, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। फिर जय भी आएगा, आपको बताएगा। वो उसमें एक विधान रखा है जय का कि ये क्या है, इसके माने मतलब क्या। ये ऐसे हम मानते हैं कि इससे टाइम बर्बाद करते हैं, इसका कुछ और भी कर सकते हैं। गांधी जी ने तो स्पिनिंग मिल किया, तो उसमें चरखा जो बनाया, उसमें पटना में जो म्यूजियम है सब, उसमें काफी सारे चरखों के साथ उन्होंने प्रयोग किए थे यंत्र। तो ये काफी चरखा, काफी सारे तरह के चरखा रखे हैं पटना म्यूजियम, गांधी म्यूजियम में। ये भी एक वो दिमाग चलते रहता था उसका। यंत्र और तंत्र दोनों के साथ में मिलाकर जो भी करते थे वो, तो वो अभी हम तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी को वी कांट अवॉइड, तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म दैट। ये थोड़ा सा एक थोड़ा विचार है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक हमारे समय में जब सबसे अगर अंग्रेजी इस्तेमाल होता है तो शेयरिंग, everyone is sharing something. Thank you for sharing, please share. Everyone is sharing something, you know. I don't know what are they sharing and for what, but so I also want to share something with you. Thank you very much. So we'll have a look at the film. अंधेरा हो जाएगा पूरा हॉल में, कंप्लीट अंधेरा। मैं बीच में शायद कुछ बोलूंगा तो आप शायद आपको मुक्ति बोध की कविता याद आ जाए अंधेरे में, पॉसिबल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ, आप सब आए। और अशोक जी, मुझे आपने निमंत्रित किया, बहुत ही धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ आपका, इंडिया इंटरनेट सेंटर का भी आभारी हूँ, रजा फाउंडेशन का भी। आपको मुझे आशा है कि ये तो ठीक लगेगा। इसमें कोई बुद्धि का मैं ऐसा लेक्चर लिख के तो आया नहीं था, मैं तो थोड़ी बुनियादी बातें करनी थी। तो मुझे आशा है कि आप निराश नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेगा है पवन का है, पवन बहुत जोर से चल रहा था। ये नानी बहन है बारडोली। देखो पौधे भी नृत्य करने लगते हैं।
गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। Total radius must be 2 hours from Surat. गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। ओ राम नाम रस पीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हमरो, जग हंसे हमरो। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। तेरा नाम रस पीनी चदरिया, जीनी रे जीनी।
કનેક્શન થી સારી સ્કેન ઇટ એન્ડ પુટ ઇટ પ્રોપરલી આપણે રિનોવેશન કરવાનું ઘણું કામ છે તો છતાં લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આવ્યા ને કરતા કઈક ચોખ્ખું છે સ્ટ્રક્ચર બી સારું છે કે સ્લાઇડ નાખી દે ચોખ્ખું છે આ બધું આર્કિટેક્ટનું કામ રીતાબેન કર્યું છો આ વસ્તુ એમણે આટલું તૈયાર કર્યું ના ના એવું ને તો નીકળ્યા છો ને કે આ કરી બધા યુવાનો છે આપણું ભવિષ્ય છે गांधी जी जब जेल में गए तब उनके जो साथी थे उन लोगों को गांधी जी ने बोला, साथियों ने गांधी जी को बोला कि आप तो जेल में तो हम अब कहाँ जाएंगे। तो गांधी जी ने उन लोगों को बोला कि आप गाँव में जाओ। तब जुगतराम काका पहले सरगोन गए, बाडोली के पास में सरगोन है, वहाँ पे गए और यहाँ का एक जीवन दादा करके आदिवासी लोग था, वो गांधी जी के पास गया और उनको गांधी जी को बोला कि आप कहीं न कहीं आपके लोगों को भेजते हो तो हमारे यहाँ भी किसी को भेजो ना। तो गांधी जी ने जुगतराम काका को यहाँ पे भेजा और जुगतराम काका वेल्स में आए और तब ये पूरा विस्तार कई बदियों से भरा हुआ था। कई लोग वो कहते हैं ना सेठियों के नीचे दबे हुए थे, उनके पास से पैसे लाते थे, फिर घर का कुछ चलाते थे, खेती बेटी करते तो कुछ होता तो वो वहाँ दे आते थे, नहीं दे पाते तो वो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता था और वहीं दब जाते थे। ऐसा किस्सा। फिर दारू भी बहुत पीते थे, नशे में रहते थे, ऐसे लोगों की परिस्थिति थी। तो जुगतराम काका ने उन सब लोगों को एकत्रित किया, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न किया, खुद खेती करो ऐसा समझाया, फिर खादी का काम शुरू किया। खादी का काम करते करते काका को ऐसा लगा कि उन लोगों का उद्धार करना है तो सिर्फ ये सब कामों से नहीं होगा, शिक्षण भी चाहिए। और तब उसने आश्रमशाला और उत्तर बुनियादी कहीं पे शुरू की। फिर उत्तर बुनियादी और आश्रमशाला शुरू की, तब उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो टीचर आएंगे तो बाहर से आएंगे, ये गाँव के यहाँ के ही टीचर नहीं होंगे तो उन लोगों को समझ कैसे पाएंगे। और गाँव का उद्धार करना है तो यहीं का टीचर चाहिए। इसकी वजह से जुगतराम काका ने ये संस्था की शुरुआत की 1967 और यहाँ पे बीएड भी है और बीआरएस भी है। 12वीं कक्षा के फिर ग्रेजुएट होते हैं और गाँव में कुछ न कुछ करते हैं। यहीं ये बीएड की कॉलेज शुरू की, यहीं शिक्षक हो जाए और यहाँ से वो गांव में जाए और गांव का उद्धार करे। इसीलिए ये कॉलेज की शुरुआत हुई और तब से ये कॉलेज चली आ रही है और पूरी तरह से गांधी फिलोसफी पर ही चलती है। बच्चे खुद अपना काम करते हैं, सुबह में जल्दी उठते हैं और कि आपके पास आपको वो सूरत की बेटी वो बीएड भी कर लगी है, लेकिन ये सब खुद करते हैं, खुद रहते हैं, खुद का काम कर लेते हैं और इसी प्रकार जीवन कैसे जीना चाहिए वो भी यहाँ पे सीख लेते हैं। और इसी तरह ये चलता है। આપણા મલકમાં પડર ડોલિયા આપણા મલકમાં પડર ડોલિયા કોણ
हमारा मेरा भाई हालो ने अपना मलकमा हरे हालो ने अपना मलकमा कानून से लाए बानी बाबा कानून से लाए बानी बाबा कानून से लाए बानी बाबा कानून से लाए रघुपति राजा સેંકડો નહીં હજારોની સંખ્યામાં લોકો આ સત્યાગ્રહમાં જોડાવા માટે થનગની રહ્યા હતા. ગુજરાતની ગામડે ગામડેથી લોકો આ સત્યાગ્રહમાં જોડાવા માટે આવવા લાગ્યા. સ્વેચ્છાએ મરણને ભેટનારા સ્વયંસેવકોનો આટલો મોટો સમુદાય ગુજરાતે આપેલા ભાગ્યે જ જોયો. મર્દોની મર્દાની ક્યાં, તરાસના ભાઈ તરાસના. મર્દો જંગ ખેડે ક્યાં, તરાસના ભાઈ તરાસના. ઢાલબંધી છાતી ક્યાં, તરાસના ભાઈ તરાસના. હૈયે ઘોડી ઝીલાય ક્યાં, તરાસના ભાઈ તરાસના. ગુજરાતની ગામડે ગામડે આ એક જ નાદ ગુંજતો હતો. હા, ગાંધી વિશે બધા લઈ શકતો. હવે અમને પણ થોડી ઘણી હોય કેમ કે અમે પણ ત્યારે જન્મ નહીં મળે સત્યાગ્રહ એટલે ખરી માહિતી કેમ કે હવે એ છે એટલે જાણકારી તો મેળવી. वैष्णव
ગાંધીનો એસી કેસ ધરાશા સ્વરૂપમાં હું મુંબઈનો પછી આ ઝારખંડથી છે, મુંબઈમાં રહે છે, તમે ગોંડલનો છે, અમદાવાદથી આવે છે. ગોંડલના? હા. અચ્છા. પછી મને એમ હું ધરાસા વિશે એને કહું, મને ધરાસા વિશે પક્ષપાત ખૂબ સરસ લડાઈ, એટલે એ કથા કહેવાની મને ઈચ્છા, એટલે હું એને કહેતો હતો. મને કે એ તમે નહીં કહો, તો આખું પુસ્તક લખ્યું છે ધરાસા વિશે. અમેરિકાનો એક માણસ ધરાસા લખ્યું તો મને ખબર નથી, મેં વાંચ્યું પણ મેં આખું પુસ્તક લખ્યું છે કે આજે મીઠું ઉપાડે છે ભીમરાડાનું છે કે અહીંયાનું છે ફોટો? આ ફોટો ભીમરાડનો છે કે આ જે ફોટો છે એ ગાંધીજી સૌથી અહીંયા હતા, નવમી ત્યાં ગયેલા. ભીમરાડ જે કહે છે તે ખોટું નથી. સરકારી જે પુસ્તકો છે, માહિતીઓ છે, એમાં એ ભીમરાડનો ફોટો છે એમ લખેલું, ગાંધીનો કોઈ ફોટો નથી. હમણાં એ જ જોયું અમે ધરાસણા. હું એમ કહું છું એવું કેમ બને? ગાંધીનો ફોટો કેમ નહીં હોય? કારણ કે ફોટોગ્રાફરો તો ત્યાં કે અહીંયા હતા, એટલે એવું બને કે એ ભીમરાડના નામે જે ફોટો છે આ એ ગાંધીનો જ હોય, પણ તે વખતે ભીમરાડ લખી દીધેલું હોય, છાપા હોય, એટલે એ ચાલુ થઈ ગયો હોય. जाब अपना अवध में
दिन है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखी फिल्म और मुझे लगा कि इस तरह से भी गांधी को देखा जा सकता है, हाथ में हाथ मिला के गीत गाते गाते। और एक हमारी श्रद्धा है, एक आशा है, एक ऊर्जा है। जो नानी में इनको देखा कैसे
वाह वाह चिल्ला उठती थी देखकर। 80 प्लस है ये महिला, आज भी इतनी प्रवृत्त है, इतनी एक्टिव है। हर आप संस्थाएं देखे आज तो इतने बड़े बड़े लोग उम्र में ऐसे भी बड़े हैं, वो चलाते हैं। जवान लोग अभी उसको मैनेजमेंट एजुकेशन कुछ अलग सिखा रहे हैं, नो लंच इज फ्री, पहला एक प्रिंसिपल। मेरे देश में सब लंच फ्री होता है, मेरी संस्कृति है। ऋतिक घटक की फिल्में देखिए आप, एक बाउल आएगा वो वापस नहीं जाता है। एक दुष्ट जो है वो मेघेडा का तारा में, वो उसको भी फिर उनका पति है, तो हर साधु जो भी आता है वो पलता है। ये ऐसा नहीं हम किसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए पहले से टाइम डिसाइड नहीं, इसलिए अतिथि शब्द आया हमारा। कोई भी तिथि नहीं होती जिसकी, तो ये हमारे कल्चर के अंदर है सब। आई थिंक एवरी लंच इज फ्री, एवरी डिनर इज फ्री, एवरी ब्रेकफास्ट फ्री। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन ऐसा फिर सब मोनिटाइज करने में लग गए, जुड़ गए। इसके अंदर कुछ रास्ते निकालने हैं। ये रास्ते शायद ये बच्चियां दिखाती है, आदिवासी लड़कियां, छोटे यंग स्टूडेंट्स जो जिसमें ऊर्जा है, जिसमें कुछ ताकत है, जिसका भविष्य बहुत है, वो कुछ रास्ता दिखाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इस फिल्म को देख के इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई, कुछ पहले से डिसाइड नहीं किया था कौन सा गाना कब गाएगा, सब आपो आप हो रहा है। ये फकीर भाई का एक घर था, बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, वो झूला पड़ा था तो हम बैठ गए ऐसे, किसी को पूछा भी नहीं। दोनों लड़कियां जो है शीतल और मेघा, कोई पहले से कुछ तय नहीं किया था हमने, सब अपने आप होते गया। जब गांधी दांडी से निकले थे तब कुछ योजना बनाई नहीं थी ऐसे, तब गांव जोड़ते गए, लोग आते गए और 2 से पंज से पंजा बन गया, पंजी इज 25, पंजा इज 50 बनते गए। आखिर तो कमाल तो एकेंद्रिय और से पंचेंद्रिय तक जाने का ही अमीबा टू ऑक्टोपस की जो सफर है तो होती गई। और ये जो विधान है जो जैन ने किया है मोबाइल फोन पे, ये इस पे बनी है स्पॉन्टेनियस, जो भी है उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई, कुछ विचार भी नहीं था। हमने इसको बोला था कोई डॉक्यूमेंट करते जाओ, कभी काम में आएगा, फिर विचार आएगा, हम इसको फिल्म बनाते हैं। क्योंकि इतनी सारी ऊर्जा है गानों में और सब गाते हैं, गायन रहेगा, गीत रहेगा, शब्द लिखा हुआ शायद नहीं, वो गीत तो रहेगा। आज भी ओरल ट्रेडिशन जो है रामायण की वगैरह, वो गा के तुलसीकृत रामायण जो भी किसान गाते रहते हैं, कुछ है नहीं। वैदिक परंपरा में देखिए तो सब ओरल ट्रेडिशन, इतना बड़ा आर्काइव, सच अमेजिंग आर्काइव दैट वी हैव स्टिल इट कंटिन्यूज। सिर्फ ओरल ओरालिटी का जो आर्काइव है इस देश के अंदर, मेरे ख्याल से भारत देश में ये बहुत यूनिक है, एक विशिष्ट है। ये जो ओरल आर्काइव जो है इतनी भव्य है और जिसका जो हम तो उसको नाप भी नहीं सकते, लेकिन है जो आज भी है। तो ये जो गीत और नृत्य सब आवाज वृद्ध सब जुड़े हुए हैं। तो सिनिसिज्म टू सॉलिडारिटी जो हमारा एक साथ में हाथ मिलाकर गाना। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जय को, फिर शायद पार्थिव भाई भी कुछ बोले, क्योंकि इसके पिताजी अबू भाई जुड़े हुए हैं इससे वेड़छी में खास तौर से, तो शायद ये डिब्बे के बारे में बताएगा। इसको हम आधुनिक कहे, अनुआधुनिक कहे, समय काल जो भी है वो, लेकिन ये तो सत्य है। इसका पहली फिल्म अवृक्ष मेरे एक वर्कशॉप में की था, उसमें तो वो एंड्रॉइड भी नहीं था, वो तो ऐसा डिब्बा था कि बस छोटा सा ऐसा। अवृक्ष की जो इन्होंने बात की वो विनीता पंड्या जो यहाँ पे बात हुई, जिनके आर्किटेक्ट, और फाल्गुनी देसाई, वही तापी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं हर 2 साल सूरत में। वहीं पे अमृत भाई के वर्कशॉप में ही बनी थी। तो पंच तीर्थ, हम तीर्थ पर जाने वाले हैं, तो उसके आगे के दिन हमने बात की थी एक सब डे साथ बैठकर, विनीता बहन है उनके घर पे ही। और वहां पे जब इन्होंने बात की श्याम केसी और श्वेत केसी,
वहां इन्होंने बोला था कि आज श्वेत केशी सब चुप रहेंगे, श्याम केशी की बोलेंगे कि गांधी के बारे में क्या सोचते हो आप, क्या पढ़ा है आपने, क्या करने जा रहे हैं, और पंचतीर्थ का विचार इन्होंने रखा। तो एक चीज हुई कि गांधी का ऐसे ब्लाइंड फॉलोइंग वी shouldn't do, and actually his autobiography, My Experiments with Truth, begins with his statement that no one should follow my words blindly, even you can criticize me. तो ऐसा नहीं कि गांधी के रास्ते पे चलना है तो खादी पहन ली, गांधी की जरा वो खाते थे वो खाए, चरखा चलाया, वो नहीं है। तो एक फिल्म मेकर के तौर पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो वहां पे यही विचार है। और सर की थियरी रिगर ऑफ ऑस्टेरिटी, जो सिनेमा ऑफ प्रयोग का जो मूल सिद्धांत जो बना है वो रिगर ऑफ ऑस्टेरिटी, वो यही कहती है और वो गांधी जी से ही आई है कि हमारे पास जितना ही है वही आप इस्तेमाल करो, जो यूटिलाइज द रिसोर्सेस अराउंड योरसेल्फ एट द मैक्सिमम पोटेंशियल। तो वही चीज हमने करने की कोशिश की। अगर यहाँ पे इस्तेमाल करना था साउंड रिकॉर्डर, लाइटिंग वगैरह, तो हम कर सकते थे, पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होगा उसमें से ही एक फॉर्म बाहर आएगा, उसका एस्थेटिक्स अलग होगा, उसका फीलिंग अलग होगी, पर जो फॉर्म आएगा वही हम हमारी फिल्म में, अगर जो फिल्म बनी वो भी आइडिया हमको तब नहीं था कि इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, अगर फिल्म बनेगी तो बनेगी, तो उसमें से ही ये फॉर्म एक अलग से बाहर आया। क्योंकि आगे से हम तैयार करके जाते कि हमें ये सेटअप करना है, वो सेटअप करना है, यहाँ पे ऐसा होगा, तो जो ऑर्गेनिक जो रहता है, जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो चली जाती है और वो एक भद्दी सी चीज बन जाती है। तो फिल्म ये एक पाथ जो है वो एक सर के थ्रू मैंने जाना कि ऐसा भी गांधी जी को सिनेमा के साथ जोड़ के कुछ कर सकते हैं। ठीक, विद्यार्थी खड़े हैं तो श्याम कैसी खड़े, डिब्बे के बारे में बताओ। हाँ, क्या और डिब्बा मतलब ऐसा होना चाहिए कि तब मुझे अगर इस्तेमाल करना होता तो मेरे भैया वो टेक्नोक्रेट है, उनके पास आईफोन था, मैं आईफोन इस्तेमाल करके भी कर सकता, पर नहीं, हमारे पास जेब में जो फोन है वही होना चाहिए। और ये रोल आता है इनका ही जो फिल्म मेकिंग एक्सरसाइज है वहां से, कि इनका जो वर्कशॉप होते हैं वहां पे अगर प्रोफेसर है कि कोई स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा इंसान है, अनपढ़ इंसान है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है फिल्म मेकिंग एक्सरसाइज में। और एक नियम ऐसा रहता है कि आपको फिल्म जो बनानी वो आपके जेब में जो मोबाइल है उससे ही बननी चाहिए। तो इससे क्या, हायरार्की जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कि सब लोग एक ही लेवल में, टेक्निकल जो मुद्दा है वहां पे सब लोग एक ही लेवल पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये फिल्म मैंने बनाई, अगर कोई और बनता तो उसमें से भी फिल्म बन सकती थी। यहाँ पे कुछ शुरुआत की फुटेज है वो अनुज टाक उसने शूट किया, क्योंकि तब मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई थी, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी फुटेज इस्तेमाल कर ली। तो उसका कुछ स्वरूप अलग है, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसको हम फिल्म के अंदर नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। और डिब्बा मतलब कोई हाई फाई नहीं, मैं बता दूं, सैमसंग ऑन 5 जो फोन होता है वो था, जो अभी डिसकंटिन्यू भी हो गया है, और उस टाइम उसकी वैल्यू 5,000 रुपए थी, मतलब वो काफी लो ग्रेड फोन था, और वही फोन मैंने यूज किया है। और आज तक मैंने जितनी भी फिल्में बनाई है और काफी फिल्म फेस्टिवलों में गई भी है, वो सभी फिल्में मैंने मोबाइल फोन पे ही बनाई है, 0 बजट, कोई पैसा आज तक मैंने खर्च नहीं किया है। तो ये एक तरह से गांधी जी को फिल्म मेकिंग के साथ जोड़कर कैसे फिल्म मेकिंग एक नया स्वरूप बाहर आ सकता है, वो भी एक चीज। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑडियो क्वालिटी मुझे नहीं पता था ऑडियो क्वालिटी क्या आएगी, लेकिन वो इट केम आउट वेरी वेल। जी जी, yes, और रिच ऑडियो क्वालिटी। यस यस जी, और ऑडियो में भी अगर नॉइज है, वीडियो में भी नॉइज है, नॉइज का भी एक अलग एस्थेटिक है। पवन इतना जोर से पवन चल रहा था। नॉइज को क्यों कैंसिल, नॉइज कैंसिलेशन ऑप्शन आता है फोन में कि नॉइज कैंसिल कर दो, क्यों कैंसिल करना है, उसको भी लाओ आप, नॉइज को भी देखो आप, उसको भी आप मजे से देख सकते हैं। तो पवन को नाबूद करना था, अगर पवन का आवाज जो है, अगर प्रोफेशनल फिल्म मेकर होता तो वो विंड कैंसलेशन ऑप्शन ऑफ करने वाला कैमरा यूज कर रहा होता और मफ लगाया होता उसने, और कोई भी साउंड नहीं आता उसमें, वो सिर्फ मेगा दीदी जो गा रही है वही आवाज आती, पर आने दो बीच में पवन को, उसमें क्या। तो इनकम्प्लीट फिल्म जो है वो इसका खुद का एस्थेटिक होता है, वो चकाचक होना, क्लीन होना, ये सब जो बातें हैं, ये ज्यादा कंप्लीट फिल्म है सर, जिसमें एटमॉस्फेयर
पार्थिव। इनके पिताजी तो बहुत इन्वॉल्व है इसमें। मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ बोलना पड़ेगा आज। नहीं स्पॉन्टेनियस का जमाना है। नहीं, अमृत भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और काम भी किया है कुछ। मेनली आई नो हिम एज अ फिल्म मेकर, फिल्म बफ रादर, फिल्म थियरिस्ट, एंड ये सब देख के एकदम मेरी मेमोरीज बहुत वापस आ गई, क्योंकि मैं हर साल ये एरिया में जाता था। मेरा गांव है, मेरे पिताजी का गांव है, और वेटछी मैं लगभग 25 दिन पहले था। तो वहाँ एक्चुअली मैं सूरत में तापी फेस्टिवल में एक वर्कशॉप ले रहा था, जैसे आप ले रहे थे बहुत साल पहले, मैंने इस साल लिया। तो उसके बाद मैं वहाँ गया, और वेटछी का एक छोटा सा प्रसंग कहूँगा, फिर आई थिंक आपका प्रसंग है तो आप ही ये चलाइए। मेरे पिताजी जब MS यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो BA उन्होंने कर दिया, और उनके पास पैसे नहीं थे फीस देने के। वो BA भी उनको फेलोशिप कुछ मिली थी, स्कॉलरशिप मिली थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गैप लूँ थोड़ा। तो गैप लेके उन्होंने KG सुब्रमण्यम उनके गुरु थे, उनको कहा, शंको चौधरी को, कि मैं थोड़ा गैप लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम अरेंज करेंगे कुछ। तो नहीं, तो वेटछी चले गए। जोगेंद्र काका ने उनको बुलाया, तो वहाँ वो महादेव देसाई की जो डायरी थी उनको वो हाथ से लिख रहे थे। मतलब उन्होंने हाथ से लिखी होगी, बट उनके अक्षर वो वैसे नहीं थे। तो मेरे पिताजी क्योंकि आर्टिस्ट थे तो अच्छा उनके हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने पूरी, और हर पेज का उनको कुछ 50 पैसे ऐसे कुछ मिलते थे, तो पूरी डायरी उन्होंने गांधी जी की जो है वो लिखी थी तब। तो ये जब रात में खाना होता था वहाँ, तो आश्रम में तो बहुत सादा खाना होता है वहाँ, तेल मिर्च ये सब मसाला कम होता है। तो थोड़ा सा गुड़ मेरे पिताजी के उसमें दिया जाता था। तो जोगेंद्र काका ने खास उनको बोला गया था, एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये आर्टिस्ट है तो उनको थोड़ा सा कुछ देना चाहिए ज्यादा। एनीवे, तो गांधीयन भी थोड़ा सा झुक सकते इधर उधर। गुड़ खाना था बस। बैठिए, लोग शायद कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जरूर जरूर, मैं खड़ा रहूंगा, कोई बात नहीं। कितना समय है हमारे पास? ओके, ठीक है। कोई अगर प्रश्न पूछना चाहे? मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर। जैसे एक मिनट, जय आप भी आ जाइए सर, शायद आपके लिए भी। माइक इधर, हाथ उठाइए। आप भी आ जाइए, सामने आ जाइए। हाँ, मैं जो आपने सिनेमा बनाया है तो उसकी सिनेमैटिक वैल्यू क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे लिए एक सवाल बहुत बुनियादी है, और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उसमें ये है कि सिनेमा को सीखना नहीं चाहिए। जो आपके पास है वही एक तरह से स्वयंभू है। मेरे ख्याल से ये विचार काफी खतरनाक है। और मैं जानता हूं कि बड़ी फिल्में, जैसे कि एक फिल्म है जू, श्लोक शर्मा की, जो कि मोबाइल पर शूट हुई है, पूरी फीचर फिल्म। अनसेन सॉडरबर्ग की एक फिल्म है जो कि इसी पर शूट हुई है। तीसरी फिल्म है टैंजरिन, वो भी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, और ये फिल्म मुझे बहुत मीडियोकर लगी, और मुझे लगता है कि इससे सिनेमा आहत होता है इस तरह के प्रयोगों से। और इसमें जो शिक्षा विरोध है आपके पूरे के पूरे विमर्श में, वो मुझे ठीक नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, मोबाइल पे फोन बनती है और ये बनी, उसमें फर्क है। इसमें कोई भी उपकरण का उपयोग नहीं हुआ है पहले तो। और स्क्रिप्ट लिखना जो आप बोल रहे हैं, जो भी महान फिल्में बनी है इतिहास में आप देखिए, तो उसमें कोई स्क्रिप्ट पटकथा लिखी नहीं गई है। घोदार ने कभी लिखा नहीं था, मणिकौल ने नहीं लिखा था,
कुमार शानी भी लिखते नहीं थे पटकथा, जिस हम कन्वेंशनल जो सेंस है हमारी पटकथा की, ऐसे नहीं करते थे। वो हमारे वो तो जो अहमद बना रहे थे मणि कौल, तो उनके अयूब खान बीन एक्टर थे, लंदन से आए थे, तो उनको दिखा के नहीं कहते कि आपको ऐसा चलना है, आपको ऐसा करना है। बोले मैं ध्रुपद गाऊंगा और आप उसको रिस्पॉन्ड करिए, और फिर वो रिस्पॉन्ड करता, वो टेक को ओके कर देते थे। ये भी ऑल्टरनेटिव थिंकिंग का, ये मीडियोकर है नहीं है वो तो आपका वो है मूल्यांकन करना। ये कोई फिल्म कृति की कोई क्लेम भी नहीं करते हम कि फिल्म कृति है वगैरह, ये तो सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें कोई हमको कोई अवार्ड नहीं लेने, कुछ नहीं। इसमें जो मुख्य जो तत्व है वो हमने कहा था कि इसमें ऐसे नहीं कि सिनेमेटोग्राफिक वैल्यू, सिनेमैटिक वैल्यू, जो भी, मैं सिनेमैटिक शब्द यूज नहीं करता हूँ, सिनेमेटोग्राफिक। रॉबर्ट ब्रेस्नो थे, उस मूवी नहीं बोलते थे, सिनेमेटोग्राफी बोलते थे, क्रिएटिव फिल्म मेकिंग। आप उसकी नोट्स ऑफ ए सिनेमेटोग्राफर, छोटी सी किताब है, वो पढ़िए तो पता चलेगा। छोटी छोटी एफोरिज्म्स लिखी है उन्होंने, और फिर मणि कौल ने भी लिखी है ऐसे एफोरिज्म्स, अमित दत्ता ने लिखा है ऐसे। तो ये जो है, जो वैल्यू जजमेंट करना, वो तो आपका काम है, आप जैसे चाहो कर सकते हैं, वेदर हैज एनी वैल्यू और नॉट, मीडियोकर है और भी घटिया है, वो सब आप जो भी कहना चाहे तो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें गांधी सेंटर में है। गांधी की पॉलिटिक्स जो भी थी वो एक स्वयं विचारित थी। गांधी ने जो भी प्रयोग किए अपने जीवन पे किया, पहले अपने शरीर पे किए। वो जो प्रयोग किए थे वो कैसे थे, ठीक थे, नहीं थे, वो जो हम जो है वो डिसाइड करेंगे। जो आज कुछ हो रहा है, जो भी गांधी के बारे में, गांधी सोचते नहीं थे कि लोग क्या सोचेंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये फिल्म मीडियोकर बने, कुछ नहीं। ये एक जोड़ने का सवाल था, हमने जोड़ने का काम किया। जो आज जो समय है वो कंसोलिडेशन का जो समय, आपको ये पता था ये महात्मा गांधी गेट आपको मालूम था? मैं पूछता हूँ आपको। नहीं, आपको पता था ये? मुझे तो कुछ नहीं पता सर। तो फिर आपको मिला ना कुछ? आपको मिला, वो तो करिए आप एक्नॉलेज। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं मालूम है। नहीं, ये गांधी की बात है। प्रस्तुत हो तो अपने एस्थेटिक्स के साथ प्रस्तुत। एस्थेटिक्स, ये भी एस्थेटिक होता है। जॉन अब्राहम ने मारियान बनाई लास्ट फिल्म, वो इतनी एस्थेटिक की बात करे, सिनेमेटोग्राफिक वैल्यू की, तो उसको कहाँ खड़ा नहीं रख सकते। लेकिन इतनी ऊर्जा जो है उसमें शक्ति, उस पर कभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी। बिना स्क्रिप्ट की फिल्म में आपको उदाहरण के साथ कह सकता हूँ इतनी महान कृतियां बनी है जो लिखी नहीं गई थी, जो पूर्व योजित नहीं थी, जो प्री डिटरमाइंड नहीं थी। ये प्री डिटरमाइंड होना ये भी एक खतरा है। आप जो प्री डिटरमाइंड करते हैं ना, नहीं फिर इसके बाद ये शॉट आएगा, इसके बाद ये आएगा, फिर हवा चलेगी, फिर इसके बाद हिलेंगे, ये सब मणि कौल ने अभेद आकाश में लिखा है। आप पढ़िए उसको, अभेद आकाश, उदयन वाजपेयी के साथ बातचीत। इतनी एक अहमियत वाली किताब है, विचार है। एक्चुअली किताब क्या होती है? तो ये अगर सिनेमा को कोई भी विद्यार्थी उसको नहीं पढ़ता है तो मुझे लगता है कि कुछ उसमें अधूरापन है। अभेद आकाश, अनक्लोवन स्काई, स्पेस को डिवाइड करते हैं तो सवाल पैदा होते हैं। आज दुनिया में जो भी, मैं मानता हूँ, जो भी प्रश्न आज हुए हैं, जो युद्ध चल रहे हैं, ये बेसिकली हमने स्पेस को डिवाइड किया। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आता है, LAC, LOC, सब ये स्पेस है। विनोबा जी ने बताया सब भूमि गोपाल की होती है। ये जो अनडिवाइडेड स्पेस है इसको भी हमने डिवाइड कर दिया। तो ये बात जो अभेद आकाश में की गई है, सिनेमा को ये करना चाहिए। सिनेमा स्पेस को डिवाइड करता है, सिनेमा प्री डिटरमाइंड करता है। कमर्शियल सिनेमा ये करता है कि ये सेक्रेड स्पेस है, ये प्रोफेन है, और सेक्रेड और प्रोफेन के बीच का जो विभाजन करते हैं, वो मणि कौल ने संघर्ष किया टालने का, ऐसा जैसा मेरा सोचना है। आप अगर अभेद आकाश पढ़ोगे तो ये बात उभर के आती है। ये और स्क्रिप्ट का नहीं लिखना, ये भी एक एस्थेटिक का ही भाव है। आप देखिए, आप पढ़ोगे ये सब तो पता चलेगा कि ये जो आप मूल्यांकन की बात करते हैं, वो तो आपका जो भी आप करें वो
वो तो सबका फ्रीडम है। Yes. जी नहीं अमृत आपने माइक इधर थी। नहीं गांधी तो एक जी गांधी तो एक विचार है अमृत, और आपने जो उसका सादापन है वो हर बंदे के, हर बच्चे के चेहरे पे वो दिख रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि फिल्म को बहुत ही अच्छी तरह से फिल्म की तरह बनाया जाए, जो विचार है वो प्रकट हो रहा है। फिल्म ने हमको बनाया भाई, हमने नहीं बनाया। तो वही जो विचार है गांधी का वो हर चेहरे पे नजर आ रहा है। जैसे आपके वो नानी बहन जो है जी उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो वो आपका मकसद तो पूरा हो रहा है। आप फिल्म बनाने तो नहीं गए थे वहाँ। बिल्कुल। बस फिल्म हमने नहीं बनाई भाई, फिल्म ने हमको बनाया। फिल्म मतलब क्या, ये लोग विचार दिख रहा है। सर उसी कंटेक्स्ट में सर किसी भी क्रिएटिव मीडियम या जो लिखता है, आप चित्रकारी करता है, उसका एम होता है कुछ मैसेज कन्वे करना। मीडियम तो एक व्हीकल है। हम बहुत महंगी फिल्म बनाते हैं, सत्य फिल्म बनाते हैं, यहाँ से आपका उद्देश्य है महात्मा गांधी को दिखाना, उनको दिखाना, और उन 5 जगह उनके माध्यम से फिल्म तो बना ही नहीं रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो वो किए हैं अपने काम में 100% सफल, इनका ऑब्जेक्टिव पूरा है। अंदर से 1 करोड़ रुपया भी खर्च कर सकते थे। ठीक, मैसेज यही आता है। महात्मा गांधी फिल्म देखे तो मैसेज वहां भी यही आता है, ये यहाँ आया। थैंक्स। यस, लास्ट वन। बहुत बढ़िया फिल्म है। जो आप करना चाह रहे थे वो वहाँ हम फिल्म ले जाती है हमें, ठीक है। जैसा कि बाकी लोग भी कह रहे हैं, दिलचस्प है कि गांधी और सिनेमा का रिश्ता जाहिर है कि 36 का रहा है ना, लेकिन सिनेमा ने गांधी के लिए इतना कुछ किया, ये भी दिलचस्प है। इसलिए ये जो विस्तार आप दे रहे हैं चरखा और मोबाइल के बीच में, मुझे लगता है बिल्कुल गांधीयन है ये, और यही इसकी स्ट्रेंथ है, यही बात है। दूसरी बड़ी बात जो ये है, आपकी यात्रा ऑफकोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गांधी सिर्फ स्मृति नहीं है, गांधी को लोग आज भी जी रहे हैं ऐसे विभत्स माहौल जैसा आप कह रहे थे, में एक्चुअली जी रहे हैं, ठीक है। जब वो गा रहे हैं फैज के साथ मिला करके, वैष्णव जब तो तेरे के, कुछ तो है जो हो रहा है वहां पर। तो हर चीज एक खास एस्थेटिक्स की ऊंचाई से जज नहीं की जा सकती है, और इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए लोगों को। बहुत एलिटिस्ट किस्म की बात है ये। बिल्कुल एलिटिस्ट नहीं है। ठीक, मैं कुछ बोलूँ? मैं आपसे पूछना चाह रही थी, तो मैं खास तौर से आपको ही मिलने आई हूँ क्योंकि मैं बहुत पढ़ती आपने देखी नहीं फिल्म? नहीं, मैं एक प्रोग्राम में गई थी। फिर आप कैसे पूछ सकते हैं? बैठ जाइए। नहीं पूछ ना, ये नहीं पूछ रही, बिल्कुल नहीं, उसी को हक है पूछने का जो यहाँ रहा है। नहीं, ये पूछना चाह रही हूँ कि कहाँ देख सकती हूँ? मैं दिखाऊंगा, कोई फिक्र मत करिए, सबके लिए है। मित्रों, इसके पहले कि मैं आपको धन्यवाद दूं, मैं 2 प्रसंग सुनाना चाहता हूं जो मुझे बहुत ही मार्मिक लगते हैं। ये 10 मार्च के दौरान है। गांधी जी एक गांव में पहुंचे और वहां ग्राम प्रधान के घर में उनके ठहरने की व्यवस्था थी। फिर उनको सार्वजनिक रूप से संबोधन करना था। गांधी जी बड़े चतुर थे। उनको ये पता चल गया कि गांव के हरिजनों को हकाल दिया गया है और वो दूर बैठे, और जहां उनका व्याख्यान होने वाला है वहां सब सवर्ण जाति, बड़ी उच्च जाति के लोग। गांधी जी वहां गए, बैठ गए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। तो गांव प्रधान खड़ा हुआ, उसने कहा कि हम तो आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे, आप कुछ कह नहीं रहे। नहीं, मैं तो चूंकि आप सब लोग यहाँ बैठे थे तो आपको के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए बैठ गया। मुझे जो कहना है मैं वहां कहूंगा जहां वो बैठे। अब खलबली मच गई और उनको लाके सामने बैठाया गया। तब गांधी जी ने भाषण दिया। और जो दूसरा है वो और मार्मिक है। वो एक गांव पर पहुंचे जहां एक नदी पार करके अगले गांव जाना था। कोई पुल नहीं था और नदी इतनी, उसमें इतना पानी नहीं था कि नाव चल सके, और इतना कीचड़ था कि पैरों से नहीं पानी। तो सलाह हुई कि रात को 12 बजे
ज्वार में, ये समुद्र के निकट है, कि नदी में पानी आ जाएगा तो गांधी जी और उनके जो 70-75 वो नाव से पार करेंगे। गांधी जी तो मिनटों में सो जाते थे, तो सो गए। अब ये जो गांव वाले हैं, इनकी चिंता शुरू हुई। गांव वाले गरीब हैं, अनपढ़ हैं, और उनकी तथाकथित राजनीतिक चेतना का कोई पता नहीं। गांव वालों को चिंता हुई कि इतनी अंधेरी रात में हम गांधी जी और सत्याग्रहियों को नाव में कैसे पार कराएंगे, तो कुछ रोशनी होनी चाहिए। बहरहाल किस्सा कोताह ये है कि जब गांधी जी उठकर 12 बजे आए तो सैकड़ों गांव वाले अपने हाथ में दिया लिए हुए खड़े थे, और ये खबर दूसरी ओर भी पहुंच गई, तो वहां भी लोग दिया लेकर खड़े थे। आप कल्पना कीजिए, ये कितने बरस पहले की बात है, और आज भी अगर ऐसा मौका होगा तो आपके उससे मुझे यही सीख मिलती है कि फिर भी लोग रोशनी लिए अंधेरे में पार करने के लिए खड़े। धन्यवाद। अब क्योंकि हम कई दिनों से शांत थे, तो अब हमारा बुलंद तो अब शुरू हो रहा है। तो अभी 19 और 20 और 21 मार्च को हम ध्रुपद पर केंद्रित एक आयोजन कर रहे हैं, ध्रुपद वैभव, जिसमें ध्रुपद के कलाकार होंगे, और वो एनेक्स में होगा। उसके बाद 28 और 29 मार्च को अब मेरे लिए तारीख बारीख का कोई खास मतलब नहीं। 27-28 तो 27-28 हर वर्ष एक कार्यक्रम करते हैं युवा, उसमें 50-55 युवा लेखकों को बुलाते हैं हिंदुस्तान भर से, जो हिंदी के लेखक हैं। इस बार 9 कवियों पर हमारा ध्यान एकाग्र होगा। वो 9 कवि हैं: धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर सक्सेना, विजय देवनारायण शाही, रघुवीर सहाय, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, कमलेश और कमलेश्वर तो कभी नहीं थे, अगर गुप्त रूप से उन्होंने लिखी हो तो मुझे पता नहीं, और राजकमल चौधरी। तो इन पर तो ये 27-28 को अभी रुक जाइए, अभी मामला 4, 5, 6 अप्रैल को हम हबीब तनवीर जन्म शताब्दी के मौके पर उनको एक तरह से अपनी ओर से अंतिम प्रणति देंगे। 3 दिनों का एक नाट्य समारोह यहाँ ऑडिटोरियम में है। पहले दिन रतन थियम, धर्मवीर भारती की कविता कणु प्रिया पर आधारित एक प्रस्तुति देंगे। अगले दिन पूर्वा भारद्वाज, जिन्होंने हबीब तनवीर की जिंदगी और उनकी पर एक नाटक लिखा है। तीसरे दिन राजेंद्र पंचाल, कोटा के पास कहीं काम करते हैं, वो एक नाटक, क्या कोई कवि जबरी मल्ले ने कौन क्या नाम है उसका, जो भी। आखिरी 8 अप्रैल को कुमार गंधर्व की जन्म शती समाप्त होगी। तो 8 अप्रैल को अमित दत्त हमारे लिए एक फिल्म बनाई है कुमार गंधर्व पर जी, क्या फूल का छंद। असल में ये कुमार जी की उक्ति पर आधारित है, जिसको मैंने रिपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने मुझसे ही कहा था। उनका बेटा मुकुल शिवपुत्र, हम लोग गए थे दक्षिण, तो लौट के आए तो कुमार जी से मिलने गए। तो उनका कुमार जी दक्षिण में लोगों को लगता है कि बहुत व्याकरण का पता है, जो कि हम लोग जिस भी शास्त्रीय संगीत सभा में गए वहाँ लोग चाय वाय कॉफी पीते हुए बड़ी व्याकरण डिस्कस करते होते। तो उन्होंने कहा कि इसके पहले कि वो कुछ कहते, मुकुल शिवपुत्र ने कहा यही तो रोना है, व्याकरण है मगर कला नहीं है।
ये बात कुमार जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा अरे राजा, बिना छंद के फूल नहीं खिलता है। तो ये उक्ति बिना छंद के फूल नहीं खिलता है कर प्ले करते हुए फूल का छंद नाम से उन पर फिल्म है, जो वो भी ऑडिटोरियम में दिखाई जाएगी। और अमित दत्त की इस फिल्म का ये विश्व आरंभ होगा जी। तो आप में से अगर किसी को दिलचस्पी हो तो जरूर आइए, बाकी अब आप घर जा सकते। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी कहानी कह दी। ये गुलदस्ता है, तो हमने फूल दिया था तब नारायणपुर में थे, कोई फंक्शन किया था हमने हमारी फिल्म सोसाइटी के अंदर। तो एक मैंने सोचा है फूल क्यों खराब करना, फेंक देते लोग, तो एक फूल दिया था उनको, बहुत सजा के अच्छा फूल। एक फूल का नाम आपको पता है क्या है? गोभी का फूल। उनकी बीवी इतनी खुश हो गई कि तो मैं सब्जी बनाऊंगी घर पे। क्योंकि आप यहीं रुके हो, सब्जी नहीं बना सकते।